नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेनाओं की मदद, ड्रोन से पहुंचाया जा रहा है खाना और सामान। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की चुनावी मुहिम की शुरुआत की, बीजेपी और आरएसएस पर कड़े हमले किए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बदलापुर रेप मामले पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण कई इलाके पानी से प्रभावित हो गए हैं और बहुत से लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। इस संकट के घड़ी में आंध्र प्रदेश की सरकार प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। ड्रोन की मदद से बाढ़ पीड़ितों तक खाना और अन्य आवश्यक सामान पहुंचा रही है। जनसेना के नेता नागा बाबू ने इस राहत कार्य की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रही राहत गतिविधियों को दिखाया गया है। డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తాం। ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాను। ఇంకొక పక్కన ఈరోజు మీరు చూస్తే ప్రతి ఒక్క వార్డులో 1000 కుటుంబాలకు ఒకరిని పెట్టుకుంటాం, వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ కూడా ఇస్తాం। ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా మెసేజ్ పంపించాలంటే ఆ మెసేజ్ కూడా పంపించడానికి పెడతాం। అదే మరి సచివాలయం కేంద్రంగా ఇవన్నీ మానిటర్ చేస్తాం। సచివాలయానికి ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, ఆ స్పెషల్ ఆఫీసర్ అందరికీ రీచ్ అయ్యేట్టుగా ఏమేం చేయాలనో అవన్నీ నేను చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యి ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు। ఇంకొక పక్కన ఈరోజు నేను ముందే చెప్పాను, డూస్ అండ్ డు నాట్స్। ఈ సమయంలో చాలా వరకు వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది, అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది। దీనికోసమే ఏమి చేస్తే మంచిది, ఏమి చేయకూడదు, ఈ రెండు కూడా ఒక పాంప్లెట్ తయారు చేస్తున్నాం। ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో చైతన్యం తెచ్చే విధంగా ఈ పాంప్లెట్స్ ఇచ్చి తద్వారా ప్రజా చైతన్యంతో వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ఏమేం చేయాలనో అవన్నీ చేస్తాం। ఇది కాకుండా ఈరోజు టెక్నాలజీ ఉపయోగించి డ్రోన్ కానీ సెల్ ఫోన్ కానీ ఎన్యూమరేషన్ కూడా దీన్ని వాడమంటున్నాం। రాష్ట్రం మొత్తం ఎక్కడైతే వరి పంట దెబ్బతినిందో, పంటలు దెబ్బతిన్నాయో డ్రోన్ ద్వారా కవరేజ్ తీసుకోమంటున్నాం, అనలిటిక్స్ తీసుకోమంటున్నాం। అదే మరి ఇండ్లలో కూడా నీళ్లన్నీ వచ్చి స్కూటర్లు కానీ మోటార్ బైక్లు కానీ లేకపోతే కార్లు కానీ ఇవన్నీ ఉంటే దెబ్బతింటే అవన్నీ క్లీన్ చేసే బాధ్యత కూడా ఫైర్ సర్వీస్కి అప్పచెప్తున్నాం। ఎక్కడికక్కడ అవి కూడా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ రిపేర్ గవర్నమెంట్ పంపించే విధంగా। ఇంకో పక్కన రేపో ఎల్లుండో బ్యాంకర్స్తో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్తో కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం। ఏవైతే మోటార్ వెహికల్స్ ఉన్నాయో లేకుంటే ఈ ఆటోలు కానీ కార్లు కానీ ఉన్నాయో వాళ్ళకందరికీ ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పించడానికి ఏమేం చేయాలో చేసి ఒక 15 డేస్ లోపల అవసరమైతే సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పించి ఏ విధంగా క్లెయిమ్స్ అన్ని సెటిల్ చేయాలో చేస్తాం। అదే మరి కొన్ని వ్యాపారాలు పోయినాయి, కొన్ని ఈ యొక్క వాళ్ళు చేసే చిన్న చిన్న షాపులు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా పోయే పరిస్థితి వచ్చాయి। ఇండ్లో కూడా నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది। 3 రోజులుగా ఎవరికి ఏ పని లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసి ఏ విధంగా వీళ్ళందరికీ సహాయం చేయగలుగుతామో అవి కూడా ఆలోచిస్తున్నాం। ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నష్టపోయారు, ఆ నష్టపోయిన దానికి ఏమేం చేయాలనో అవన్నీ కూడా చేస్తాం। ఈ రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి న్యూ గైడ్ లైన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం। రేపు అవన్నీ కూడా ఫైనలైజ్ చేసి ఇది టీంతో ఎన్యూమరేషన్ కూడా పూర్తి చేసి అదే మరి టోటల్గా రీహాబిలిటేషన్ కూడా పూర్తయిన తర్వాతనే ఇక్కడుండే అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీకి వెళ్తాం। అంతవరకు వీళ్ళంత వరకు ఇది పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా। ఇది బ్రాడ్గా ఈరోజు మేము డిస్కస్ చేసుకునింది। ఇవి ఎప్పటికప్పుడు రేపటి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఒక ఆలోచన వస్తుంది। ఎప్పటికప్పుడు అందరు ఆలోచనలు తీసుకొని సమర్థవంతంగా పనిచేయడం కోసం ఇప్పుడు బుడమేరు ఉంది, అక్కడ వాటర్ కూడా ఈ సింగనగర్ రాకుండా నేరుగా కొల్లేరు లేకపోతే వీటీపీఎస్ నుంచి కృష్ణానదికి వచ్చేదానికి అక్కడుండే అడ్డంకులను కూడా తొలగించి తొందరలో
ग्रेटर हैदराबाद की मेयर गदवाल लक्ष्मी ने हाल ही में जीएसएमसी अधिकारियों के साथ साफालीगुड्डा झील का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मेयर ने अधिकारियों को गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए झील पर विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर स्थानीय बीजेपी पार्षद श्रावण मलकाजगिरी डिवीजन के एसीपी और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे। मेयर ने सुनिश्चित किया है कि आगामी उत्सव के दौरान झील की सुरक्षा और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कल रात हैदराबाद में गरज के साथ भारी बारिश हुई, जिसके कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में 70 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अनुसार हैदराबाद के उपनगर कपड़ा में सबसे ज्यादा अधिक 72.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सिकंदराबाद और गाजू लारामरम निर्वाचन क्षेत्रों के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई, जिससे कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हैदराबाद में लगातार बारिश की भविष्यवाणी की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार लोगों की अधिकार छीनकर राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है। उन्होंने बेरोजगारी, बिजली की समस्याओं और देश में बढ़ती नफरत पर भी चर्चा की। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है, जबकि हमारा मकसद प्यार को बढ़ावा देना है। वह तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और प्यार नफरत पर हावी हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब नरेंद्र मोदी सीना तान कर नहीं बल्कि सर झुकाकर आते हैं, और ये पहली बार है जब राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को
हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। ज्यादा रेट देते हो आप, ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है।
देश से ज्यादा बेरोजगारी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बुधवार को बदलापुर रेप मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बलात्कार घटना के बारे में बोल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। संजय राउत ने ये भी आरोप लगाया कि इस मामले में शामिल स्कूल के प्रिंसिपल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से संबंध है। राउत ने आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा स्कूल का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है। क्या यह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए किया गया है या इसके पीछे कोई और राज छुपाने की कोशिश की जा रही है? खरं म्हणजे राज्याचा सगळा निधी विद्यार्थ्यांचा, शेतकऱ्यांचा, सामाजिक न्याय विभागाचा हा सगळा निधी राजकीय कारणासाठी फक्त एकाच योजनेकडे वळवल्यामुळे शेतकऱ्यांवरती आफत आलेली आहे, हे मी स्पष्ट सांगतो. सर, आपत्यांसंदर्भात तुम्ही वक्तव्य केलं होतं की वर्षावरती असं मात्र मुख्यमंत्री म्हणतात की चॅलेंज दिले, तुम्हाला आव्हान दिले की वर्षावर येऊन शोधावं आपत्यांना. आता अजूनही आपटे भेटत नाही. नाही, आपटे भेटत का नाही सांगावं ना. म्हणजे जर आपटे सापडत नसतील, त्यांना लुकआउट नोटीस जाहीर केली, बरोबर ना. आपटे को लुकआउट नोटीस जारी किया है ना. लुकआउट नोटीस जारी केली याचा अर्थ पोलिसांच्या हातात तो लागत नाही. मग या राज्यामध्ये गृह खातं, या राज्यामधलं सरकार काय करत आहे? महाराष्ट्रातून जर ते पळून गेले असतील ते महाशय, तर त्यांना पळून जायला या सरकारने मदत केलेली आहे. आणि पळून गेले नसतील आणि महाराष्ट्रात असेल तर त्यांना लपण्यासाठी अत्यंत सुरक्षित जागा, मी गेल्या काही दिवसामध्ये अनेक गुंडांचं आश्रयस्थान झालेलं आहे, गुन्हेगारांचं आश्रयस्थान झालेलं आहे. मी मागे बोललो, मंत्रालयाचा 6वा मजला असेल, वर्षा असेल, मी त्या संदर्भातले एक फोटोची मालिकाच प्रसिद्ध केली होती मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या. मग वर्षाशिवाय गुन्हेगारांना, अपराधांना आश्रय घेण्यासाठी सुरक्षित जागा कोणती आहे? तर वर्षा. नसेल तर तुम्ही अटक करा. का अटक करत नाही? तुम्ही आम्हाला अटक करता, तुम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना अटक करता, तुम्ही आमच्यावर गुन्हे दाखल करता, आमच्यावर खोटे खटले दाखल करता. मग छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा ज्या पद्धतीनं तुटला, तोडला, माझी माहिती आहे साधारण की या पुतळ्याच्या निर्मितीसाठी जे बजेट सरकारकडून मंजूर झालं होतं, काही कोटी, ते बजेट कुठे गेलंय त्यांनाच माहिती. हा पुतळा फक्त 10 ते 15 लाखातच बनवला, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. हा पुतळा 15 ते 16 लाखात बनला, पण साधारण पुतळ्यावर 15 ते 16 कोटीचं बजेट मंजूर झालं होतं. पश्चिम बंगाल में एक विधेयक पास हुआ है जिसके तहत 10 दिन के अंदर जो रेपिक थे उसको सजा देने का जो प्रावधान किया गया है, ये पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और 12 घंटे जो है पश्चिम बंगाल बंद किया था. जबकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, बदलापुर की घटना हो या अन्य जो भी घटना हो, उसको लेकर किसी जो पॉलिटिशियन है कोई बात नहीं कर रहे, जो सत्ताधारी पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये बात नहीं कर. हम तो बात कर रहे हैं. वो जो जिस स्कूल में ये हुआ है बदलापुर में, उस संस्था के जो प्रमुख है वो भी आपटे ही है. एक कोतवाल है कोई, उनके ऊपर एफआईआर किया है, लेकिन अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया है. सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किया उस स्कूल से? ये संस्था के जो प्रमुख है उसने किया होगा ना. क्यों किया? क्या सिर्फ एक अपना जो सिपाही है, हाँ, उनको बचाने के लिए? क्या उसके पीछे और कुछ रहस्य है? आप देख लीजिए. तो सरकार क्या कर रही है? हम तो बोल रहे हैं ममता दीदी के खिलाफ आपने जो आंदोलन किया पश्चिम बंगाल में, वो एक राजनीति. हॉस्पिटल में जो दुर्घटना हुई है डॉक्टर के बारे में, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने गुनहगार को अरेस्ट किया, जांच की. और क्या करना चाहिए? अब एक कानून बनाया, लेकिन आपने 15 दिन तक पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ये बीजेपी के लोगों ने, ये गुंडों के हाथों में रही, हिंसा हो गई. जिम्मेदार कौन है? अब महाराष्ट्र में पूरा बदलापुर ने, पूरा महाराष्ट्र लगभग उस आंदोलन में उतरा था. हमारे ऊपर न्यायालय के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट के जज बीवी नागरत्ना ने हाल ही में न्यायिक छुट्टियों के दौरान वेतन लेने पर अपनी भावनाएं साझा की है और कहा है कि उन्हें अक्सर इस बारे में बुरा लगता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह जब अदालत में मौजूद नहीं होते तो उस समय वेतन प्राप्त करना उनकी अंतरात्मा के लिए कठिन होता है। ये टिप्पणी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके सिविल न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि में आई है, जिसकी सेवा में बर्खास्त के बाद अदालत ने हस्तक्षेप से बहाली की गई है और सरकार ने उनके पिछले वेतन का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। जज नागरत्ना ने कहा, गर्मी की छुट्टियों के दौरान वेतन प्राप्त करना मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमने इस दौरान कोई काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुन्नई दौरे के बाद सिंगापुर पहुंचते ही भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत का आनंद लिया। सिंगापुर के मरीना बे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की धुन पर ढोल बजाकर एक अलग अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र के साथ रणनीति साझेदारी को गहरा करना है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर मोदी ने इस दक्षिण पूर्वी एशिया के देश की अपनी 5वीं आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की। मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना की फिल्म इमरजेंसी अब 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो सकेगी। बम्बई हाईकोर्ट ने इस मामले पर कंगना को कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह CBFC को फिल्म की निर्माताओं की सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा करना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आदेश का उल्लंघन होगा। कंगना ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं हर किसी की पसंदीदा टारगेट बन गई हूँ। यह वो कीमत है जो एक सोए हुए देश को जगाने के लिए चुकानी पड़ती है। हेडलाइंस फिर। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेनाओं की मदद, ड्रोन से पहुंचाया जा रहा है खाना और सामान। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की चुनावी मुहिम की शुरुआत की, बीजेपी और RSS पर कड़े हमले किए। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने बदलापुर रेप मामले पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर लगाया आरोप। 1 TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।